Okay, so hello everyone. Let's discuss this DPP, which is on heap and sorting algorithms. Okay, so the first question is, which of the following is valid min heap? Which of the following is valid min heap? Okay, so in order to solve this, we'll have to just check. Just give me a second. Okay, so 34, 38, 35, 39, 40, 36, 50. Okay, this is your option A. Now all we have to do is we have to check whether this is valid min heap or not. But can we do it directly? No. We'll have to first construct a binary tree from this. Okay, we'll first construct a binary tree from this. So you know that if I is the parent, its children are 2i and 2i plus 1. Okay, this is the basic logic. So for 34, 38 and 35 are the children. And then for 38, 39 and 40 are the children. For 35, 36 and 50 are the children. Now, is this a valid min heap? How do we confirm that? So for 34, 38 and 35 are the child, which is, so this is the minimum. Okay. So this is so far correct. And for 38, 39 and 40, so this is also min heap. And 35, 36 and 50, this is also min heap. So overall, this is maintaining the min heap property. So I will say it's a valid min heap. But let's confirm all the options. B option as well. So option B is 24, 14, 12, 24, 14, 12, 13, 10, 8, 16, 13, 10, 8, 16. So first 24, then 14, and then 12, then 13, 10, 8, 16. Now, is this a valid min heap? As you can see, this parent is greater than the child's, and this is also greater than child. This is also greater. So this is not even a max heap, not a min heap. So this is not a valid heap. Invalid min heap. It is a invalid min heap. Okay, perfect. So only A is correct, B is not correct. Both are also not correct. This is also not correct. So the correct answer to this question is option A. Okay, so let's move on to the next. The minimum number of interchanges needed to convert the array into a max heap. The minimum number of interchanges needed to convert the array into a max heap. So what we'll do, we'll actually use the logic of heapify. Okay, so from the given array, we'll first convert it to a binary tree, complete binary tree, and then that complete binary tree will make it as a heap. Okay, and we need to make it a max heap. Okay, so 89, 19, 40, 17, 12, 10, 2, 12, 10, 2, 5, 7, 11, 5, 7, 11, 6, 9, 70, 6, 9, and 70. Okay, so see how we'll first create a binary tree. So given is 89, 19, 40, then 17, 12, then 10, 2, then 5, 7, then 11, and 6, and then 9, and 70. Okay. Now, first of all, is this a max heap?
So let's quickly check. So far, it's a valid maxi. This is also valid, but as you can see, this is not a valid maxi because of the 70. So now we'll perform heapify. We'll perform heapify. So for heapify, we'll start with the lowest level. Okay. So lowest level is always a heap. Then you will check for 2. 2 is also heap. Then you will check 10. And you will swap 10 with the maximum element. So this will become 70 and this will become 10. Okay. So this is a max heap so far. 12, 11, 6 is max heap. 17, 5, 7 is a max heap. Then you will go one level up. So 40 will be replaced by its maximum child. So one swap here, another swap would be required here. So this is 40, this is 70. So two swaps, or I should say one more swap here. So two swaps so far. Okay, and now 40 is at its correct position. Okay. Then 19 is also greater than both of its child, so it's a valid maxi. And 89 is also greater than both of its child, 70 and 19, so it's a valid maxi. So total two swaps are needed. First swap was between 10 and 70, and then 70 and 40. Okay, so the correct answer to this is 2. This is wrong, wrong, wrong. The correct answer is C. Okay, I hope you have understood this point. Let's move on to the next. Consider a complete binary tree where the left and the right subtrees of the root are max heaps. Okay, consider complete. It is a complete binary tree where the left and right subtrees of the root are max heaps. The lower bound for the number of operations, the lower bound, the minimum, okay, minimum number of operations to convert the tree into a heap. And we know that when they say heap, by default, they are referring to max heap. They are referring to max heap. Okay. Now let's understand this question. So what it is saying is you have a root node, and there is a left subtree, and then there is a right subtree. Okay, left subtree and right subtree. Okay. Now it is asking the left and the right subtree, the lower bound for the number of operations to convert the tree to a max heap. Means it is saying the minimum number of comparisons possible, like below which it can never go, to convert this to a max heap. So that will happen when it is already a max heap. When already a max heap. In that case, you will simply have to compare root with the maximum of 2. Okay, so you will compare root with maximum of 2, maximum of both of its children, and that's it. Okay, so one comparison. One comparison. Okay, or you can say two comparison, because first you will find maximum and then you will compare root with it. Okay, but constant time, constant time, that is order of 1. Okay, on the other hand, if they would have asked you, given the same situation, this is also a max heap, given this is also a max heap, and this is also a max heap, given this situation, what is the maximum number of comparisons? Now, given that left and right subtrees are max heaps, what is the number of comparisons? So for that, I'll have to, in worst case, go and adjust the root at the leaf level. So in that case, it will be height. So I will say maximum
operations, given that left and right subtrees are max heap, otherwise it will be way much more than that. Okay, so it will be height, order of height, or you can say order of log n. Okay, but again, this is not asked, this is asked. So many people mark log n, which is wrong. It will be order of log n, but it will be omega of 1 and order of log n. Okay, max possible and minimum possible. तो लोअर बाउंड मीन्स इससे कम तो हो ही नहीं सकता, लोअर बाउंड मीन्स इससे कम तो हो ही नहीं सकता, कम से कम इतना ही लगेगा, इससे कम पॉसिबल ही नहीं है किसी भी केस में। तो ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आई होप आप सबको समझ गया है। चलिए, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, वो वर्स्ट केस का लोअर बाउंड निकालते हैं, वर्स्ट केस का लॉग इन लगेगा, वर्स्ट केस में लॉग इन में ही गारंटी है, लेकिन बेस्ट केस रहेगा जिसके लिए हम लोअर बाउंड निकालेंगे, लोअर बाउंड के लिए हम बेस्ट केस कंसिडर करते हैं। ठीक है, और उसमें ओमेगा ऑफ 1 बोलेंगे हम। ठीक है, नाउ कंसिडर अ मैक्स हीप। एक सेकेंड, ये है एरे वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 40, ये है 30, ये है 20, ये है 10, ये है 15, ये है 16, ये है 17, ये है 8 एंड ये है 4। तो आपको एक मैक्स हीप दिया है। नाउ कंसिडर दैट द वैल्यू 35 is inserted into the max heap. After the insertion, the new heap is dash. तो आपको एक हीप दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि 35 आप इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, तो न्यू हीप क्या बनेगा, यानी एडजस्टमेंट्स वगैरह के बाद। तो आपको इसमें हीप का इंसर्शन ऑपरेशन अप्लाई करना है। क्या करेंगे, हीप में जो इंसर्ट ऑपरेशन होता है, इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक ही एलिमेंट इंसर्ट करना है, क्योंकि हीप तो ऑलरेडी गिवन है, कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। तो चलिए पहले हीप बना लेते गिवन को। तो 40 है, 30 है, 20 है, 10 है, 15, 16, 17, 8 और 7, ये आपको गिवन है। तो ये है 40, 30, 20, 10, 15, 16, 17, 8 एंड 7। ओके, अब आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है 35। अब देखिए इंपॉर्टेंट, क्या 35 आप यहाँ इंसर्ट करेंगे क्योंकि लीफ लेवल पे करते हैं हमेशा? नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री फैशन में इंसर्ट करना है, क्योंकि ये हीप है, कंप्लीट बाइनरी ट्री लॉजिक। ये तो कंप्लीट बाइनरी ट्री के लॉजिक से आप हमेशा लेफ्ट टू राइट इंसर्ट करते हैं लीफ लेवल पे। तो आप इंसर्ट करेंगे 35 यहाँ। अब आप क्या करेंगे, 35 को एडजस्ट करेंगे उसकी करेक्ट पोजीशन पे, जो कि बॉटम से टॉप जाएगा। तो 35 और 15 आप जैसे कि देख सकते हैं, आपको चाहिए है एक मैक्सी, आपको चाहिए एक मैक्सी। तो आप 35 और 15 को स्वैप करेंगे, तो ये बन जाएगा 35 और ये बन जाएगा 50। तो वापस 35 और 30 को कंपेयर करेंगे, तो ये बन जाएगा 35 और ये बन जाएगा 30। एंड आप 35 और 40 को करेंगे तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड, मीन्स ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजिशन। तो 40, 35, 20, 40, 35, 20, 10, 30, 16, 17, 8, 7, 15, ये रहेगा आपका फाइनल मैक्स हीप आफ्टर इंसर्टिंग, आफ्टर इंसर्टिंग 35। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो ऑप्शन से डिकोड करते हैं, वो ऑप्शन से हीप बना के देखते हैं कि क्या ये वैलिड है या नहीं। देखिए ये रॉन्ग देगा आंसर, बहुत कम लोग सोचते हैं। ऐसे बहुत सारे हीप स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो आप लिख सकते हैं, आप 40, 20, 35 भी लिख सकते हैं। करेक्ट, आप 40, 30, 25 भी लिख सकते हैं, 20, बहुत सारे वेज से हीप बना सकते हैं सेम एलिमेंट्स का। लेकिन पॉइंट ये है कि इस गिवन
गिवन हीप में इंसर्ट करके एक यूनिक ही फॉर्म होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गिवन हीप में इंसर्शन एक प्रॉपर वे से परफॉर्म होगा और आपका आउटपुट भी एक प्रॉपर ही आएगा। आप ऑप्शंस में से कौन सा वैलिड मैक्स हीप है ऐसा करेंगे तो आपके मल्टीपल आंसर आ सकते हैं जो कि रॉन्ग भी हो सकते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको सिर्फ प्रॉपर प्रोसीजर से ही जाना है। आपको ट्री लेना, आपको वो गिवन हीप लेना है, उसमें इंसर्ट करना है बॉटम अप फैशन में, एंड उसी के बाद आंसर लिखना है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, चलिए परफेक्ट। तो अब आप इसको लिख दीजिए। तो ये हो गया 40, 35, 20, देन 10, 30, 16, 17। आप जाएंगे बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, फिर 8, 7 एंड 15। सो 40, 35, 20, 40, 35, 20, 40, 35, 20, फिर 10, 30, 16, 10, 30, 16 एंड फिर 17, 8, 7, 5, 17, 8, 4, 50, 4 है क्या? ओ सॉरी, माय बैड, दिस इज 4 एक्चुअली। Okay, my bad. This is 4, but yes, it will not impact the solution. Okay, so this is 4. Okay, so 415, yes. So B is the correct answer. Answer is B. D is also having three values same, but this 15, 16, and then 30 here is wrong. Okay, because this is not a valid maximum. So I hope you understood this question and answer. Okay, very interesting. And please don't use shortcut. You have to solve it in a proper manner ताकि आपका right answer है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ, यहाँ पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल मिन हीप containing each value from 1 2 3 4 5 6 7 exactly once। ये देखिए, ये थोड़ा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है देखा जाए तो। ठीक है, तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं सर, चलो समझते हैं इसको। देखिए, आपके पास 7 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स आपके पास। ठीक है, अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका स्ट्रक्चर तो फिक्स रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ मैक्स हीप बोला है या मिन हीप? मिन हीप बोला है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मिन हीप, मैक्स हीप के लिए आंसर सेम ही आएगा बट स्टिल, मिन हीप विथ 7 एलिमेंट्स, विथ 7 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7। कुछ भी हो जाए, वैल्यूज कहीं भी हो, स्ट्रक्चर ये रहेगा। पहली बात था, ठीक है, स्ट्रक्चर ये रहेगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये मिनी हीप है तो इसको इसके दोनों चाइल्ड से बड़ा होना जरूरी है, फिर इसको इसके दोनों चाइल्ड से बड़ा होना जरूरी है, यानी कि दिस विल बी द ओवरऑल मिनिमम एलिमेंट, ओवरऑल मिनिमम एलिमेंट। तो 1 से लेकर 7 तक मिनिमम एलिमेंट है 1। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है कि 1 होना जरूरी है। समझा सबको? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और पॉसिबल ऑर्डर नहीं है, पक्के से या 1 होगा। तो अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 में से 1 तो गया, 1 तो फिक्स हो गया अपनी पोजीशन पे। अब आपको देखना है ये 2 3 4 5 6 7 का कैसे अरेंज कर सकते हो। अब देखिए, अगर आप पूरे बनाने जाएंगे स्ट्रक्चर तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आप पूरे स्ट्रक्चर बनाने आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है। तो हम लॉजिक समझेंगे। लॉजिक ये है कि अब आप ये 6 एलिमेंट्स में से यहाँ पर कोई भी 3 पिक करेंगे तो कितने वेज में? आप यहाँ 6C3, 6 में से आपको 3 चूज करना है। तो ये वाले, इसमें आप 6C3 वेज से एलिमेंट चूज करके अरेंज कर सकते, चूज कर सकते हैं, सॉरी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6C3 से आपने लेफ्ट के लिए 3 एलिमेंट्स पिक की। ठीक, बट
अब आप उसको कितने वे में अरेंज कर सकते हैं? तो देखिए, इतनी तो गारंटी है कि जो भी ये तीन में से मैक्सिमम एलिमेंट होगा ना वो यहाँ होगा। तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास एक टू टू आप बाकी दो को एक बार या कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको मैक्सी बनाना है 3 4 5 का। तो गारंटी से 3 यहाँ रहेगा, लेकिन 4 लेफ्ट हो सकता है, 5 राइट हो सकता है, और 5 लेफ्ट हो सकता है, 4 राइट हो सकता है। ये दोनों केसेस पॉसिबल है। तो इस केस में भी आपका ये 2 इसलिए मल्टीप्लाई होगा क्योंकि आप लेफ्ट और राइट को इंटरचेंज करके दो केसेस बना सकते हैं। एंड रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स तो यहाँ आने, क्योंकि आपने यहाँ सिलेक्ट कर लिए तो यहाँ बचे हुए एलिमेंट्स ही आएंगे। लेकिन उस बचे हुए में से मिनिमम यहाँ आ जाएगा, और बाकी दो को यहाँ दो वेज में अरेंज होना पड़ेगा। तो इसलिए और एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज योर अप्रोच 1, जो कि बहुत ही बढ़िया अप्रोच है। लेकिन ये अप्रोच जब बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए तब वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपको जब बहुत सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये अप्रोच जब बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले तो इसको कर लेते हैं। तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 6 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4। तो 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 × 2 × 1 इंटू 4। ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 6 और ये 3 to 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बचेगा 5 × 4 × 4, 5 4 = 20, सो 20 × 4 विच इज 80। तो आपका आंसर आता है 8080। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसका आंसर आ जाता है 80, फाइनल आंसर। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अप्रोच हमेशा डुएबल नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे मैथ्स के लॉजिक से आया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। बट हमें थोड़ा बेटर अप्रोच चाहिए जिसपे हम रिलाई कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक बेटर अप्रोच समझेंगे। ठीक है, वो बेटर अप्रोच क्या है? देखिए, आपको बस ये याद रखना है कि अप्रोच 2 ये एक यूजिंग फॉर्मूला है। ठीक है, टी ऑफ एन इक्वल्स टू n - 1 सी के मल्टीप्लाइड बाय टी ऑफ के इंटू टी ऑफ n - k -1। इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। ठीक है, वेर n आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म हीप विथ, एंड k है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेफ्ट सब ट्री। अब देखिए, इसका मतलब समझिए, यहाँ पर n है, तो मैं बोलूंगा इन आर केस n इज 7, 1 से लेकर 7 तक 7 एलिमेंट्स है। एंड k है, तो आपका स्ट्रक्चर जो है, तो आपके लेफ्ट सब ट्री में है 3 एलिमेंट, तो k की वैल्यू है 3। तो आपका t of 7 हो जाएगा n - 1, यानी कि 7 - 1, सॉरी, 7 - 1 सी के, C3 इंटू टी ऑफ के इंटू टी ऑफ n - k - 1। तो ये बन जाएगा 6c3 इंटू t of 3 इंटू t of 3। अब देखिए, ये रिकर्सिव है, क्योंकि t of 7 के लिए आपको t of 3 पहले पता होना चाहिए। तो अब आप t of 3 कैसे फाइंड करेंगे? t of 3 यानी आपको एक हीप बनाना है 3 एलिमेंट्स का, इसका मतलब है t of 3। ठीक है, तो अगर आपको हीप बनाना है 3 एलिमेंट्स का, तो आपका n3 है, तो आपका k कितना है? k है आपका 1, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री में एक ही एलिमेंट है, तो k है 1। तो आपका t of 3 हो जाएगा n - 1, जो कि है 2 c k इंटू टी ऑफ के
इंटू टी ऑफ के। ठीक है ना। अगर एक ही एलिमेंट है हीप में तो कितने हीप्स पॉसिबल है? वन। सो टी ऑफ वन इज वन। ये आप बेस कंडीशन मानिए, ये आपकी बेस कंडीशन है। ओके, आप ये याद भी रख सकते हैं। तो इससे आपका टी ऑफ थ्री आ जाता है टू इंटू वन यानी कि टू। तो आप यहाँ टू पुट करेंगे, यहाँ टू पुट करेंगे, तो ये आपका आ जाता है सेम 63 इंटू टू, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 80 आए। तो ऐसे आपको समझना है कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। अब आपको मैं टी ऑफ कुछ भी पूछ सकता हूँ, कोई भी नंबर दे सकता हूँ, एंड आप इसी लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एक वैलिड क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, रैंडम कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा आपको प्रॉपर एक नंबर के लिए ही पूछा जाएगा। तो बस ये लॉजिक के लिए आपको आना ज़रूरी था। ठीक है, पूछा जाए या नहीं एग्जाम में, आपको ये पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है एंड किस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर फाइनली है 80। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। Consider the following statements. The smallest element in a max heap is always at leaf node और at leaf level। लेवल बोल लीजिए या नोड बोल, क्योंकि लीफ नोड तो आ, हाँ ठीक है, लीफ लेवल। ओके, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ मैक्स हीप इज ऑलवेज एट अ लीफ लेवल। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेटली ट्रू है, ये आपका डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि मैक्स हीप में मैक्सिमम एलिमेंट रहेगा और हर चाइल्ड अपने पेरेंट से मिनिमम होगा, हर चाइल्ड अपने पेरेंट से मिनिमम होगा। तो आपका डेफिनेटली लीफ लेवल पे या लीफ नोड रहेगा एक मिनिमम एलिमेंट हमेशा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमेशा लीफ लेवल पे रहेगा। ठीक है, चलो बढ़िया। द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ मैक्स हीप इज ऑलवेज अ चाइल्ड ऑफ द रूट नोड। द सेकेंड, और ये लीफ नोड भी हो सकता है, लीफ नोड बोलिए या लेवल बोलिए, दोनों करेक्ट है। द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ मैक्स हीप इज ऑलवेज अ चाइल्ड ऑफ द रूट नोड। हाँ ये भी करेक्ट है। देखिए, मैक्स हीप में मैक्स हीप में ये तो मैक्सिमम एलिमेंट रहेगा पक्का फॉर श्योर। ठीक है, अब सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट, सॉरी, सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट, हाँ यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, कहीं भी का मतलब है ये दोनों में से एक जगह हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट इतनी गारंटी है कि वो हमेशा ऑलवेज चाइल्ड रहेगा रूट नोड का। तो हाँ ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, वन एंड टू आर ट्रू। A max heap can be constructed from a binary search tree in order of n time। हाँ क्या ये ट्रू है? यस। कैसे? बाय यूजिंग हीपीफाई। ठीक है, ये हीपीफाई का डेफिनेशन है। अगर मैं आपको एक बाइनरी सर्च ट्री दूँ या बाइनरी ट्री दूँ फॉर दैट मैटर, कंप्लीट बाइनरी ट्री दूँ, तो आप इससे हीपीफाई करके, आप इसको हीपीफाई करके इससे बना सकते हैं। ठीक है, तो यस। ठीक है, a binary a binary search tree can be constructed from a max heap in order of n time। इसका आंसर है फॉल्स। ओके, a binary search tree cannot be constructed from a max heap in order of n time। No, this is not true, so this is false। तो आपका सिर्फ वन थ्री एंड, सॉरी वन टू एंड थ्री करेक्ट है। तो वन थ्री एंड फोर, फोर रॉन्ग है, फोर रॉन्ग है, फोर रॉन्ग है, तो आपका वन टू एंड थ्री करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाता है। ओके, चलिए यही क्वेश्चन था बट आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये बोल रहा है लेट एच बी अ बाइनरी मिन हीप consisting of n elements implemented as an array। What is the worst case time complexity of an optimal algorithm to find the maximum element in H?
Let H be a binary min heap consisting of n elements implemented as an array. तो H आपका बाइनरी min heap है. What is the worst case time complexity of an optimal algorithm? Worst case time complexity क्या है एक optimal algorithm की to find the maximum element in H? Basically minimum heap में maximum element find करना है. ठीक है. हम्म, अब देखिए इसके दो अप्रोचेस है. ठीक है, इसके दो अप्रोचेस है. अप्रोच वन, लॉजिक ऑफ मिन हीप. ठीक. देखिए अगर आपका कोई भी मिन हीप है, ठीक है, तो मान लीजिए कि ऐसा स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पर है आपके 7 एलिमेंट्स, 7 एलिमेंट्स. और आपके लीफ लेवल पे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? आपके लीफ लेवल पर प्रेजेंट है 4 एलिमेंट्स. लीफ लेवल पर प्रेजेंट है 4 एलिमेंट्स. ओके. तो लॉजिक ये है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ n/2 एलिमेंट्स आर एट लीफ लेवल. ऑलमोस्ट हाफ एलिमेंट्स आर एट लीफ लेवल. ओके. एंड योर maximum element will always be a leaf node in a mini heap. ये तो हमने एज अ प्रॉपर्टी और क्या पता ही है लॉजिक से, राइट? तो आपको एट मैक्स n/2 एलिमेंट्स में सर्च करना है. तो जिसका टाइम आपको लग जाएगा ऑर्डर ऑफ n. एक ये लॉजिक है, एक ये लॉजिक है. ठीक है. अब दूसरा इससे भी बेटर अप्रोच है, इससे भी इजी अप्रोच है. अप्रोच टू. अप्रोच टू बोलता है कि आप किसी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री को किसी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री को हीप बना सकते हैं यूजिंग हीपीफाई. यूजिंग हीपीफाई और बिल्ड हीप. करेक्ट. और हीपीफाई और बिल्ड हीप यूज करके क्या करेंगे? तो देखिए आप किसी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री को बना सकते हैं. तो आप मिन हीप को भी मैक्स हीप बना सकते हैं यूजिंग हीपीफाई. बट सर आप मैक्स हीप यानी आप हीपीफाई करके मिन हीप को मैक्स हीप क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अगर मैंने एक बार मैक्स हीप बना लिया तो क्या इससे मुझे कुछ कंफर्मेशन आएगा? यस. तो maximum element is always at root of maxi. तो ये प्रॉपर्टी मैं यूज कर सकूंगा डायरेक्टली. मैं मैक्सिमम एलिमेंट को एक्सेस कर सकूंगा रूट नोड पे. पहला एलिमेंट है. ठीक. तो दिस इज हाउ आई कैन सॉल्व दिस. सो मैक्सिमम एलिमेंट विल ऑलवेज बी एट द रूट. तो इसमें कितना टाइम लगेगा? हीपीफाई को लगता है ऑर्डर ऑफ एन. तो ऑर्डर ऑफ एन में उसको मैक्सिम बनाऊंगा और ऑर्डर ऑफ वन में उसको एक्सेस कर लूंगा रूट नोड को. ठीक है. तो इसका आंसर है ऑर्डर ऑफ एन. ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है. आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन. ठीक है. ऑर्डर ऑफ एन. परफेक्ट. ऑसम. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? और ये एक एमएसक्यू है. मल्टीपल कैन बी करेक्ट. एक एमएसक्यू है. ओके. सो बबल शॉट इज स्टेबल बट नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक. ओके. तो बबल शॉट की जो स्पेस कॉम्प्लेक्स देखिए इन प्लेस के लिए इन प्लेस. एक सेकेंड.
स्टेबल के लिए आपका दो इक्वल एलिमेंट्स का रिलेटिव रिलेटिव ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट्स शुड बी मेंटेन बिफोर एंड आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, किसी भी एल्गोरिथम को स्टेबल होने के। बट आपका जो इन प्लेस है उसका लॉजिक क्या है, वो होता है डिटरमाइन आपके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एट मैक्स होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ 1 विदाउट और एक्सक्लूडिंग रिकर्शन स्टैक, और होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ log n max फॉर n एलिमेंट्स फॉर रिकर्शन स्टैक। ओके, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि बबल सॉर्ट की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि आप एक फ्लैग वेरिएबल ही यूज करते हो उसमें, ऑप्टिमाइज बबल सॉर्ट है। तो ये इन प्लेस भी है, स्टेबल भी है। तो जो आपका बबल सॉर्ट है वो आपका स्टेबल भी है और इन प्लेस भी है। ठीक है, ये याद रखिए। तो ये रॉन्ग है। इंसर्शन सॉर्ट इज स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक। क्या इंसर्शन सॉर्ट स्टेबल है? यस। इंसर्शन सॉर्ट आपकी दोनों है एक्चुअली। इंसर्शन सॉर्ट आपकी स्टेबल भी है और इन प्लेस भी है, ये भी याद रखिए आप। ठीक है, तो ये करेक्ट है। सिलेक्शन सॉर्ट इज स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक। हमने सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा है, उसमें भी हम अननेसेसरी का स्वैप नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो आपका सिलेक्शन सॉर्ट है वो भी स्टेबल है और इन प्लेस है। यानी हमने जो तीन बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट देखे हैं, ये तीनों ही इन प्लेस है और स्टेबल है। बबल सॉर्ट इज एन इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक। यस, बबल सॉर्ट इज अ इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर 1। इसकी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1 एंड इसकी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है बी, सी एंड डी। इसका आंसर आ जाता है बी, सी एंड डी। So let's move ahead. So, okay, consider the following array. To sort this array using selection sort, what is the result after third pass? To sort this array using selection sort, what is the result after third pass? Okay. Okay. So these types of questions are very frequently asked in GATE and in general. Okay, because sorting में अगर आप अगर आप इंटरनल वर्किंग नहीं समझते सॉर्टिंग की तो आप आंसर नहीं दे सकते, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको इसलिए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको परफॉर्म करना है सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो पहले एरे है 70, 60, 20, 50, 40, 5, 19, 21। एक काम करते हैं, इसको न्यू पेज पे कर लेते हैं। एक सेकेंड दीजिएगा। सॉल्यूशन तो 70 है, 60 है, 20 है, 50 है, 40 है, 5 है, 19 है, 21 है। ये गिवन इनपुट है, तो ये इनपुट जाएगा पास वन को। ये इनपुट जाएगा पास वन को। अब पास वन में क्या होगा, देखिए, तो पास वन में जो मिनिमम एलिमेंट है वो सबसे लेफ्ट में आएगा, यानी वो उसकी करेक्ट पोजीशन पे आएगा। सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है, मिनिमम एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पर प्लेस करता है। ठीक है, कैसे होगा वो, आप आप इंडेक्स ढूंढेंगे पहले मिनिमम एलिमेंट का। तो आप ये चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, तो ये वन वन बेस मान के चलते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप इंडेक्स ढूंढेंगे मिनिमम एलिमेंट का, जो कि है 5। तो आप जो कि है 6, 5, यानी कि एलिमेंट 5 है, इंडेक्स 6 है। और आप इसको फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट पे जो भी है उससे स्वैप करें। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 यहाँ आ जाएगा,
और ये आपका 60, 20, 50, 40, 70, 19 और 21 आ जाए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप ये पोजीशन को, जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो अब आप इसे करेंगे सेकेंड एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन, सेकेंड मिनिमम एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पर आप प्लेस करेंगे। तो अब आप सेकेंड मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स ढूंढेंगे, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और राइट में जाएंगे। तो सेकेंड मिनिमम एलिमेंट है आपका 19। ठीक है, तो आप स्टॉप यानी आप फाइंड करेंगे इंडेक्स 7, और इंडेक्स 7 के एलिमेंट को, यानी कि सेकेंड मिनिमम एलिमेंट को आप उसकी करेक्ट पोजीशन पर प्लेस करेंगे। ठीक है, तो पास टू का जो आउटपुट होगा उसमें आपका सेकेंड मिनिमम भी उसकी करेक्ट पोजीशन पे आता है। तो यहाँ 5 है, और ये दोनों को अब आप स्वैप करेंगे, तो यहाँ 19 आ जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 40, 70, और यहाँ आपका 60 आ जाएगा, और 20। ओके, सिंपल। नाउ यू विल डू द सेम थिंग इन पास 3। यू विल फर्स्ट फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इंडेक्स टुवर्ड्स राइट, ये जो पिंक एलिमेंट्स बचे हैं उनमें से। तो हम्म, तो 20, 50, 40, 70, 60, 21, तो लगभग चांस 20 ही मिनिमम एलिमेंट है, और वो खुद ही से स्वैप हो जाएगा। तो 5, 19, 20 हो जाएगा, और ये आपका 50, 40, 70, 60, 21 रहेगा। तो थर्ड पास के बाद आपका ये आएगा। ठीक है, एंड फिर आप इसको इनपुट देंगे पास 4 में। हमें पूछा गया पास 5 के बाद, राइट। तो पास 4 में ये इनपुट जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और अब आप इसके इसमें रिमेनिंग वाले में जो मिनिमम है उसको फोर्थ पोजीशन पे प्लेस करें। तो यहाँ पर कौन सा मिनिमम है, यहाँ पर ये है ये मिनिमम। तो इसको आप स्वैप करेंगे इस एलिमेंट से। तो ये बन जाएगा 5, 90, 20, 21, और ये बन जाएगा 40, 70, 60, 50। ओके, फिर ये जाएगा इनपुट टू पास 5। ठीक है, अब पास 5 में आपका जो मिनिमम है रिमेनिंग एरे में, जो कि है 40, वो स्वैप होगा उसी से। तो ये आ जाएगा 5, 19, 20, 21, 40, एंड फिर आपके रिमेनिंग 60, 50। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या होगा, अब रिमेनिंग वाले पार्ट में, पिंक वाले पार्ट में मिनिमम एलिमेंट आप ढूंढेंगे, तो वो मिलेगा आपको 7 पे, और आप उसको स्वैप करेंगे करंट पास वाले इंडेक्स से। यानी अगर ith पास है तो i+1th इंडेक्स वाले थे, वन बेस्ड इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ 5, 19, 20, 21, 40 या 60 आ जाएगा, और अब आपका बचेगा 70 एंड 50। ओ सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दी, माय बैड, और ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है। देखिए, मिनिमम एलिमेंट आपका 60 नहीं है, एक्चुअली 50 है। ठीक है, 50 है, तो 50 को आप स्वैप करेंगे 70 से। सॉरी। ओके, तो इन पास 6, आफ्टर पास 6 द आउटपुट विल बी 5, 19, 20, 21, 40 एंड 50, एंड देन आपका 60 एंड 70। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ नाउ you will find the next minimum in remaining, this is 70, so 60 is the minimum and it will be swapped with itself. So यहाँ आ जाएगा 5, 19, 20, 21, 40, 50, 60, एंड आपका बचेगा 70, जो कि ऑटोमेटिकली सॉर्टेड है। तो पास
7। तो इस तरह से आपका फाइनल, ये है आपका फाइनल सॉर्टेड आउटपुट, फाइनल सॉर्टेड आउटपुट। ओके, अब हमसे कौन से पास का पूछा गया है? आफ्टर थर्ड पास, ओ थर्ड ही पास पूछा था, हमें लगा सिक्स पास पूछा है। ठीक, थर्ड पास के बाद क्या है? थर्ड पास के बाद आपका आउटपुट है ये। तो 5, 19, 20, 50। 5, 9, 20, 50 नहीं, ये रॉन्ग है। 5, 19, 20, 5, 19, 20, एक सेकेंड। आफ्टर थर्ड पास, आफ्टर थर्ड पास, सॉरी आफ्टर थर्ड पास, तो माय बैड, आफ्टर थर्ड पास यानी कि जो ये है, ये रहेगा आफ्टर थर्ड पास। ठीक है, सो 5, 19, 20, 21, 40, 70, 60, 50, 40, 70, 60, यस दिस इज करेक्ट। 5, 20, 19 दिस इज रॉन्ग। देखिए ये तो इतनी तो गारंटी है कि पहले चार एलिमेंट सॉर्टेड होने चाहिए आफ्टर थर्ड पास। ठीक है, तो 5, 19, 20, 50 रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी। लेट मी चेक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, 60। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। वेट, oh my bad, sorry guys, sorry, wait, sorry. See, after pass 1, this is after pass 1, this is after pass 2। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ी लिखने में मिस्टेक है। आफ्टर पास, ये गिवन है, तो आफ्टर पास 1 ये बनेगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट मैंने यहाँ प्लेस किया है, सॉरी माय बैड। ठीक है, तो आफ्टर पास 1 फर्स्ट एलिमेंट विल बी एट सॉर्टेड, आफ्टर सेकंड पास सेकंड, आफ्टर थर्ड पास थर्ड एलिमेंट, थ्री एलिमेंट्स विल बी सॉर्टेड। ठीक है, तो ये ना एक्चुअली आफ्टर पास 4 है, चार एलिमेंट सॉर्टेड, तो ये मिस्टेक हो गई। तो आप इसको देख के लिखिएगा, सेम मिस्टेक हो सकती है आपसे भी। आपको ये समझना है कि आफ्टर पास बोला गया है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये इस पास का आउटपुट है, इस पास का इनपुट नहीं है। ये ऐसे इनपुट गया, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये इसको इनपुट गया, ये इसको इनपुट गया, ये इसको इनपुट गया, और ये इसको इनपुट गया। तो आफ्टर पास 3 ये है। गलती क्या होती है कि हमें लगता है ये पास 3 का इनपुट है, नहीं, रॉन्ग। ठीक है, ये पास 3 का आउटपुट लिखा है मैंने। तो 5, 19, 20, फिर 50 आएगा, तो माय बैड, ये रॉन्ग हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है। 5, 19, 20 के बाद 50 आएगा, तो 5, 19, 20 के बाद 50, 40, 70, 50, 40, 70 एंड 60, 21, हाँ सॉरी, तो सी आंसर करेक्ट है। 5, 19, 20, 5, नहीं सॉरी, सी भी रॉन्ग है, 5, 19 होना चाहिए, ये 21 है एक्चुअली। हाँ, तो 5, 19, 20, 50, 40, 70, 60, 21, दिस इज करेक्ट। सो योर आंसर इज डी। ठीक है, प्लीज कीप अ ट्रैक ऑफ दिस। सो द वे यू आर सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप अगर पास 1 का आउटपुट लिख रहे हैं तो देख के लिखिए कि कहाँ पर लिख रहे हैं। मेरे केस में पास 1 के सामने जो मैंने लिखा है वो पास 1 का आउटपुट है, ना कि इनपुट। इनपुट तो ओरिजिनल है। हाँ, तो ये 21 था ऑप्शन में, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये 21 था। ठीक है, हाँ, तो चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो कंसिडर द फॉलोइंग एरे, हाउ मेनी इन्वर्जन्स आर पॉसिबल फॉर अबव एरे ए।
हमसे पूछा गया कितने इन्वर्जन्स है गिवन एरे में। तो इन्वर्जन क्या होता है, दो इंडाइसिस आई एंड जे such that I is less than j and a of I is greater than a of j, यानी कि greater element is on the left of smaller element in the given array। ठीक है, तो ये करने के लिए सबसे इजी क्या होता है, आप इंडेक्स बाय इंडेक्स चेक करिए, इंडेक्स बाय इंडेक्स चेक करिए, सबसे इजी वे। यानी कि देखिए, यहाँ आपको एक एरे गिवन है 50, 70, 39, 39, 85, 21, 85, 21, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आपको क्या करना है, आपको हर इंडेक्स का देखना है कितने इन्वर्जन है स्टार्टिंग विद 1। तो 1 कितने इन्वर्जन बना रहा है, 50 से जो भी, 50 के राइट में जो भी उससे छोटा एलिमेंट है वो उससे इन्वर्जन बनाएंगे के इंडेक्स के साथ। तो 70 उससे छोटा नहीं है, 13 है तो 1,3 एक इन्वर्जन पेयर है, 1,4 एक इन्वर्जन पेयर है, 85 नहीं है, 21 है तो 1,6 एक इन्वर्जन पेयर है, और 16 भी छोटा है तो 1,7 एक इन्वर्जन पेयर है। यानी 1 के साथ इन्वर्जन पेयर बनते हैं 4। इंडेक्स की बात कर रहे हैं। सेकंड इंडेक्स पे आते हैं, तो अगर सेकंड मेरा आई है, यानी ये अगर आई है तो इसके राइट में ही जे प्रेजेंट होगा। तो 70 से छोटा है 3, तो 3 इसके साथ इन्वर्जन बनाएगा, 4 इसके साथ इन्वर्जन बनाएगा, 5 नहीं बनाएगा, 6 बनाएगा एंड 7 बनाएंगे, तो 2,7। तो यहाँ भी 4 बन जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इंडेक्स 3 पे। तो 13 के राइट में उससे जो भी छोटे एलिमेंट्स है वो उससे इन्वर्जन बनाएंगे, 4 बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, और 7 बनाएंगे, 3,7। अब सिमिलरली इंडेक्स 4 पे आते हैं, यहाँ 2 बनेंगे। इंडेक्स 4 9 है, तो 9 से छोटा उसके राइट में कोई है कि नहीं, तो 4 जीरो इन्वर्जन बनाएंगे। और इंडेक्स 5 पे आते हैं, तो 5th बनाएगा 21 के साथ भी, 16 के साथ भी, तो 6 और 5, 7। तो यहाँ आ जाएगा 2। और ऑब्वियसली आपका 6 जो है वो बनाएगा 7 के साथ, क्योंकि 21 इज ग्रेटर देन 16। तो यहाँ आपके इन्वर्जन आ जाएगा 1। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके टोटल इन्वर्जन्स आ जाते हैं 4 + 4 + 2 + 0 + 1, ये 1 लिखा है, 7 नहीं। ओके, तो ये है 8, ये है 10, और ये है 3, 13 इन्वर्जन्स। और टोटल ऑफ 13 इन्वर्जन्स। 3, 4 एंड 3, 7, 13। Sorry, 3, 7 is not an inversion, my bad. 3, 7 is not an inversion because 13 is not greater than 16, my bad, sorry. So this will be 1. Okay, so this will be 1 and this will come out to be 12. So 12 is the correct answer. I made a mistake, small mistake. Okay, 13 will only form an inversion with 9. Okay, so the correct answer to this question is 12. Okay, and now let's move on to the last question. So consider the given array. How many comparisons are needed to sort, this is sort not start, this is sort the above array using insertion sort? Okay, very beautiful question. Okay, so we have to apply the logic of insertion sort. So this is, let me write 50, 70, 13, 9, 85, 21 and 16. Okay, fine. So input, I'll write input here, input 50, 70, 13, 9, 13, 9, 85, 21, 16. Now this will go as input to the pass 1. This will go as input to the pass 1. Okay.
So see, in insertion sort, first element is always sorted. Okay, and here you have 17, 13, 9, 85, 21, and 16. And you will actually have this element to be placed in the sorted part. Okay, so you will compare it with this, and as it is greater, so this is at its right position. So 50 and 70 will become as it is, and you have 13, 9, 85, 21, 16. So one pass, one comparison. I'll write comparison with green color. One comparison. Okay, then 13. So 13 is the key element. 13 will be compared with 70, so one swap, and then 13 will be compared with 50, so another swap. So here two swaps would be required, and this will become 50, 70, 13. Sorted, sorry, the sorted part will be 13, 50, 70, and unsorted will be 9, 85, 21, and 16. Okay, pass 3. So now the key element in pass 3 will be 9, one comparison, swap, another comparison, swap, and one more comparison, swap. So 3 comparisons will be required. In this pass, 3 comparisons will be required. Okay, in this pass itself, 3 comparisons will be required. Okay, so this will become 9, 13, 50, 70, and then 85, 21, 60. Okay, perfect. So when you come to pass 4, the key element would be 85. 85 will be compared with 70, no swap required, but one comparison would be required, right? So one comparison, and again this will be the sorted part. So 9, 13, 50, 70, 85 sorted part, 21, 16 unsorted parts, and pass 5. Okay, so 21, sorry, 21 compare with 85, one comparison swap, second comparison swap, third comparison swap, fourth comparison but not swap, but 4 comparisons will be required. So 4 comparisons will be required here, and this will become 9, 13, 21, 50, 70, 85, and 16 will be placed here. 16 will be placed here. Okay, and now finally in this pass 6, you will start with 16. 16 will be compared with 85, so one swap and one comparison, two comparison and swap, three comparison and swap, four comparison and swap, five comparison, fifth comparison, but not a swap. So 5 comparisons here. So this will become 9, 13, 21. Sorry. 9, 13, 16, 21, 50, 70, 85. And this is final sorted output. Final sorted output. And the total number of comparisons to get this sorted list, total number of comparisons will be addition of all of these. So 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3, plus 1 plus 4 plus 5, plus 1 plus 4 plus 5. So this becomes 1 plus 2 plus 3 is 6. This is 9, 1, 10. So 6 plus 10 is 16. So the answer is 16.
The answer to this question is 16. Okay. Yeah, so I hope that this discussion was useful, everyone. Please keep practicing. Please solve all the problems done in class. Please solve all the pending DPPs, weekly tests, and practice as much as possible. Please revise all these sessions. ठीक है, तो इसी के साथ ये DPP डिस्कशन करते हैं एंड आई होप ये आपके लिए यूजफुल था. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.